ओम शांति। शांति। सभी का स्वागत है इस वैल्यूज फॉर लाइफ सीरीज के इस एपिसोड पे। शुरू करने से पहले 1 मिनट हम So welcome all of you once again. सभी का स्वागत है फिर से इस लंबी जर्नी में। अब हम एपिसोड Sorry if my network bandwidth is low. Please bear with me. I think I may have to switch off the video to give you all a better audio शायद connection. मुझे अपना वीडियो स्विच करना। Yeah. So why do I say it's 40 is such an auspicious figure? All of you know, in the outside world, we say life starts at 40, right? So it is with all the united efforts of all of us, including all the translators, all the speakers, including the entire team from Vancouver, Canada, that we are able to do these Values for Life series episodes and workshops. So, and it's a pleasure that we have a very senior हमारा सौभाग्य है कि हमारे Lawrence, all the way. She's joined us today from Germany, and she has been with us in the past as well for a few talks. हमारे साथ पहले भी वो कई बार जुड़ चुकी हैं, तो मैं उनकी एक बहुत बड़ी इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा क्योंकि हम बहुत अच्छे से जानते हैं। Her journey began under the guidance of Dadi Janki in the UK. और दादी जानकी के साथ यूके में भी उन्होंने काफी कुछ शुरू किया। उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। वो बहुत निमित्त बनी कॉफी सेंटर्स खोलने में बहुत अलग अलग जगहों पे। And she's featured on almost more than 100 television programs on Raj Yoga. उन्होंने 100 से ज्यादा राजयोग पे टेलीविजन प्रोग्राम्स बनाए। And what I find, like, she's very approachable, very calm and composed, and always ready for our service, particularly for these talks. And as all of us know, all of you know that we are doing these values series. So she has written. जैसे आपको सबको पता है कि ये वैल्यूज फॉर लाइफ सीरीज में है, और अगर आप नहीं जानते तो उन्होंने काफी सारे प्रोग्राम्स भी शुरू किए हैं स्पिरिचुअलिटी में और इंडिया की काफी सारी यूनिवर्सिटीज में। वो काफी इंस्ट्रूमेंटल रही हैं काफी आध्यात्मिक एक्टिविटीज करने में। For a while, 2007 to 10, and after that now she is in Germany. So as usual, a few lines. और अब वो जर्मनी में है। मैं उनके लिए कुछ पंक्तियां कहूंगा जिससे पहले कि मैं सिस्टर क्लॉडिया के पास जाऊंगा। वो राजयोग टीवी के because she's kept always the Almighty, क्योंकि रखती वह वो परमात्मा को हमेशा अपने साथ, जिससे माया। You can see she's indeed so humble with no trace of pride. With her insightful talks, she takes us on this beautiful ride and helps all the souls to take their own stride, yet still giving them directions as a helpful guide. I'm sure you agree with whatever I've said in the lines for her. And speaking about unity, let's learn the art of how with each other can we unite. मदद करती हैं सोल्स को अपने कदम लेने पर, लेकिन देती हैं दिशा एक मार्गदर्शक बनकर। अब कुछ पंक्तियां एकता पर। आओ सीखें कला एक दूसरे के साथ एकता में रहने की, करे मदद एक दूसरे की आत्मिक ज्योति जगाने की, ताकि जिंदगी की मुश्किलें बोझ न लगे बल्कि उनसे ऊपर उठकर एक उड़ान भरें, जो हमें हल्का और प्रकाश से भरा हुआ बनाए, ताकि जिंदगी का गीत हमें कविता की तरह गाएं। So with this, I would like to really ask
अब मैं Claudia now to सिस्टर क्लॉडिया को इनवाइट करूंगा ताकि वो सिस्टर डेनीज का स्वागत करें। over to you, sister. Om Shanti. Good ओम morning, शांति। Peace Village in New York. पीस विलेज से गुड मॉर्निंग। And न्यूयॉर्क it's पीस an विलेज से honor सभी for को me गुड to मॉर्निंग। welcome Sister Denise मेरा बहुत बड़ा to this सौभाग्य 40th है, आज मैं episode. सिस्टर डेनीज को So we स्वागत कर reached रही here हूँ and इस I think 40वें एपिसोड पे हम it's a यहाँ big तक honor to पहुँचे have you हैं। talking to us तो today ये on बहुत बड़ा unity, सौभाग्य है हमारा कि because we आप want आज to हमसे see a एकता world पे where बात कर everybody रही is हैं, united. क्योंकि हम So यही I चाहते think हैं this कि एक would be ऐसी a दुनिया very हो good जिसमें हर एक साथ talk साथ रहे। from you. तो So ये I want आज to give एक a टॉक special बहुत अच्छी flower रहेगी to आपसे। from our Silence Rose. आपको You know साइलेंस Rose. रोज So it's a को very एक nice स्पेशल rose. फ्लावर आपको देना चाहती So हूँ। it looks बहुत सुंदर just रोज like है ये, you. So सिर्फ आपकी तरह एक सुंदर गुलाब है। and thank you बहुत for बहुत being with स्वागत। us. आप हमारे साथ बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बहुत बहुत क्लॉडिया। मेरा आज बहुत खुशी हो रही है। सभी को मेरा प्यार और बेस्ट विशेस न्यूयॉर्क में। आजकल ये दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है जिनसे हम निकल रहे हैं। सारी दुनिया बहुत चेंज से गुजर रही है। अगर आजकल हम न्यूज़ या मीडिया पे देखें तो हमें कोई ना कोई कैलामिटी दिखती रहती है एक के बाद एक। हम लोगों को काफी लगता है कि हम एक डिवाइडेड दुनिया में रहते हैं जहाँ पे अलग अलग मान्यताएं हैं, धर्मों की, रेसेस की, अलग अलग संप्रदायों की, उत्तर पश्चिम, पूर्व दक्षिण की। इसलिए एकता बहुत एक महत्वपूर्ण शब्द है। एक दूसरा महत्वपूर्ण शब्द जो एकता के जैसा ही है वो है हार्मनी। मेरा एक बहुत इंटरेस्ट म्यूजिक में है। मैं पियानो बजाती हूँ जिसमें 88 कीज हैं। तो उसको बजाने के लिए एक हार्मनी चाहिए होती है ताकि एक सुंदर म्यूजिक उससे निकल सके। उसके अलग अलग नोट्स होते हैं और एक सुंदर म्यूजिक देने के लिए जिसमें बहुत हार्मनी हो, जो लोगों को बहुत आनंद में ले जाए। इसलिए म्यूजिक को भी आध्यात्मिकता से काफी जोड़ा जाता है और दुनिया की हर एक सोल, हर एक इंसान, हर एक आत्मा अलग अलग है और हर एक से जुड़ी भी हुई है एक तरीके से। इसलिए पूरा इंसानियत एक परिवार है जिसमें हर एक अलग अलग भी है। तो एकता और हार्मनी साथ साथ काम करते हैं। एक और एक्सप्रेशन कहा जाता है जिसे जानना हमें हेल्प करेगा, जिसे हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता कहते हैं। क्योंकि हम सब अलग अलग हैं, दुनिया में अनेकता भी है। अगर हम केवल ज्योग्राफी की ही देखें तो हम देख सकते हैं कि कितनी अलग अलग चीजें हैं। लेकिन कुछ ऐसी जगहें जहां मैं गई हूँ, हमें कुछ ऐसी चीजें दिखी हैं कि जो किसी और जगह पे भी हमें समझ आती हैं। तो हमारी इंसानियत के एक्सपीरियंस में ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं, चाहे कितनी भी अनेकता हो, उसमें कोई ना कोई हमें कॉमन चीज मिल ही जाती है जो हमें पास लेके आती है। अगर हम सोचें अपनी सोल की क्वालिटीज के बारे में, गुणों के बारे में, जैसे मैं गुणों के बारे में बात करती हूँ तो मैं उनको 5 पदार्थों के साथ कंपेयर करती हूँ। एयर, वाटर, फायर, ईथर, अर्थ। ये सब साथ में काम करते हैं, अलग अलग भी करते हैं लेकिन साथ में करते हैं।
चाहे वो एक अलग अलग एलिमेंट है, एक एलिमेंट दूसरा एलिमेंट नहीं बन सकता, फिर भी जो हम एक्सपीरियंस करते हैं इस संसार को, हम जैसा भी एक्सपीरियंस करते हैं, कोई भी हम दृश्य देखते हैं या कोई भी आवाज सुनते हैं, तो ये सारी इन पांचों तत्वों का कॉम्बिनेशन होता है। और अगर हम सोल या आत्मा को देखते हैं, जैसे मैं देखती हूँ, तो मैं देखती हूँ उसमें कि 5 एसेंशियल गुण हैं: प्योरिटी, पवित्रता, पीस, शांति, प्यार, आनंद और खुशी। और ये कहना सच है कि कोई भी लगातार हम इन 5 क्वालिटीज का कॉम्बिनेशन एक्सपीरियंस नहीं करते। अगर हम शांति ढूंढ रहे हैं, तो इसका मतलब वो बहुत जरूरी चीज ढूंढ रहे हैं, उनके पास वो अभी है नहीं, तो इसलिए वो शांति के तरफ ज्यादा मुड़ते हैं। हर कोई प्यार एक्सपीरियंस करना चाहता है। लोग रिश्ते बनाते हैं एक दूसरे से ताकि प्यार मिल सके। हम प्यार देना चाहते हैं, प्यार लेना चाहते हैं, प्यार से इंस्पायर होना चाहते हैं। प्यार हमें एक अच्छा लगता है कि हम कुछ हैं जब हमें प्यार मिलता है। पवित्रता भी ऐसी ही एक चीज है जो हर कोई पाना चाहता है। अगर कोई भी कुछ साफ नहीं है, कुछ सफाई नहीं है हमारे एक पर्सनल एक्सपीरियंस में, या हमें कोई सफाई नहीं दिखती है किसी और में, किसी के साथ काम करते हुए हम अनक्लियर होते हैं, तो हम कंफर्टेबल महसूस नहीं करते, क्योंकि पवित्रता एक नेचुरल स्टेट है। हम प्योर होना चाहते हैं, हम प्योरिटी एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। किसी के साथ भी बात करें, उनमें पवित्रता देखना चाहते हैं। हम क्यों करते हैं जो करते हैं, वो एक पवित्र इंटेंशन से होता है, भाव से होता है। कई लोग कहते हैं कि उनमें इतनी शक्ति ही नहीं है, लेकिन शक्ति तो चाहिए जो हम करना चाहते हैं उसको करने के लिए। काफी टेस्ट आते हैं, काफी इंडिविजुअल चैलेंजेस आते हैं, एक सिर्फ एक को भी और एक कलेक्टिवली भी हमें वो चैलेंजेस आ सकते हैं। तब मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनमें सच्चाई की शक्ति नहीं है, अपने आप के लिए खड़े होने की शक्ति नहीं है, स्थिर होने की शक्ति नहीं है, या फिर अलग होने की शक्ति नहीं है। तो एक जो पर्सनल शक्ति है बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी भी है। आत्मा का एक गुण है अपने आप की शक्ति में रहना। और शांति, पीस या शांति, हम हिंदी में ओम शांति कहते हैं। ओम शांति हम बहुत एक दूसरे को भी कहते हैं। और मैं जब इस शब्द शांति को देखती हूँ, इसके 3 मतलब देखती हूँ। एक मतलब उसका शांति तो है ही है, दूसरा मतलब है स्थिरता, स्टिलनेस, और इसका तीसरा मतलब है साइलेंस। जो हमें एक ओरिजिनल धर्म होता है शांति का, वो है शांत में रहना, स्टिल रहना और साइलेंस में रहना। ये 3 जरूरी और मूल शुरुआत है जब सोल अपने आप को एक्सप्रेस करता है जिंदगी में। और हर एक सोल, हर एक आत्मा इन गुणों से बनी हुई है। फिर भी हर एक आत्मा अलग अलग तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करती है। तो जो जिंदगी हो रही है, इस अर्थ पे बन रही है, ये अलग अलग कॉम्बिनेशंस का डांस है, अलग अलग संस्कारों का मिलन है, अलग अलग विशेषताओं का मिलन है हर एक आत्मा की। तो अनेकता आती कैसे है, या जुड़ाव, अलगाव आता कैसे है? एक चीज जो है,
हर एक सोल इस क्षण पे बहुत शक्तिशाली नहीं है। हमने ये सीखा है कि टाइम एक बहुत बड़ा चक्र है। हम एक बहुत अच्छी स्थिति से धीरे धीरे कम होते रहते हैं, ऐसी पॉइंट पे आ जाते हैं कि जहाँ शक्ति कम हो गई है और खत्म होने वाली है। और इस पॉइंट पे शक्ति होना ही अलगाव का, शक्ति ना होना ही अलगाव पैदा करता है। चाहे हम इसको इंटरनेशनल लेवल पे देखें या चाहे अपने जस्ट अंदर ही देखें हम, या हम अपने परिवार में देखें, या फिर हमारे रिश्तों, हमारे अपने आप के साथ रिश्ता देखें, हमारा अपने शरीर के साथ, अपने मन के साथ रिश्ता देखें, उसमें भी बहुत अलगाव है। कई बार उसमें स्ट्रेस भी होता है। और जब हम आध्यात्मिकता को पढ़ते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि क्या गलत चीजें क्यों हैं। हमें ये समझ में आता है कि मुश्किल ये है कि हम अपनी शक्ति खो चुके हैं, और कोई चीज अगर चीज अच्छे से काम नहीं कर रही है तो वो मुश्किल पैदा ही करेगी। और अगर सोल ने, आत्मा ने अपनी शक्ति खो दी है तो वो अपनी सच्चे गुण में रह के काम नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें मेडिटेशन करनी पड़ेगी। मेडिटेशन का मतलब हमें ध्यान लगाना पड़ेगा एक पे। जो शब्द यूनिटी या एकता है, इसका मतलब ही है एक। लेकिन हम जानते हैं कि हर एक अपना अपना एक इंडिविजुअल एक अलग यूनिट है। और अगर हम पृथ्वी को भी देखें, वो एक प्लैनेट है। लेकिन अब हम जिसकी बात कर रहे हैं, हम वो परमपिता परमात्मा की बात कर रहे हैं। एक सुप्रीम सोल, एक परमात्मा, जिसकी कभी शक्ति कम नहीं होती, जो हमेशा स्थिर है, जो हमेशा बदलता नहीं है। यही सबसे महत्वपूर्ण एक इंग्रेडिएंट है अपनी शक्ति को वापस लाने का और एक हार्मनी की दुनिया में जाने का। जब बहुत सारे लोग अपनी आत्मा की शक्ति खोने लगते हैं और हार्मनी खोने लगते हैं, तब हमें देखा जाता है कि हम ऐसा क्या करें, हम वापस हार्मनी में कैसे आएं। वो तब तक नहीं हो सकता जब तक हम अपनी शक्ति को नहीं भरते मेडिटेशन से। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारे एफर्ट्स जो हैं वो इतने सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो मैंने इस पे काफी जाना, एनालिसिस किया, काफी सालों से देखा, और मेरा निष्कर्ष ये है कि हमेशा सबसे महत्वपूर्ण चीज है अपने आप से कनेक्टेड रहना। मतलब अपने आप को किसी भी इन्फ्लुएंस में ना आना। लेकिन आत्मा का नेचर ही है कि किसी प्रभाव में आ जाना। और हम करना क्या चाहते हैं? हम आना चाहते हैं परम पिता परमात्मा के प्रभाव में, ताकि हम उनकी शक्ति अपने आप में भर सकें। इसी को ही हम राज योगा कहते हैं, जिसे हम प्रैक्टिस करते हैं। हम एक दूसरे जैसा बनने की कोशिश नहीं कर रहे। कई लोग समझते हैं एकता का मतलब यूनिफॉर्मिटी है, जिसमें हर एक एक दूसरे के जैसा बन जाए। ऐसा हम नेचुरली फील करते हैं कि जो हमारे साथ, जिनका मन हमारे साथ जैसा हो, उनका इंटरेस्ट हमारे जैसा हो, उनका बैकग्राउंड हमारे जैसा हो, कुछ हॉबीज हमारे जैसे हो, हमारे जैसा ही नजरिया हो, हम सब ऐसा करते हैं।
लेकिन हम देखते हैं कि कुछ हमारे जैसे हैं, कुछ हमारे जैसे नहीं हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें एक दूसरे जैसा बनना है एकता को लाने के लिए। कुछ लोग ऐसा ही सोचते हैं, या ऐसा ही एक उत्तर यही है, एक दूसरे जैसा बन जाएं। लेकिन मुझे लगता है कि वेरिएशन में बहुत सुंदरता है। हर एक की अलग अलग विशेषता है और उसकी अपनी सुंदरता है। मैं एक जगह पे हूँ अभी जो फ्रांस में है। घर के आस पास एक बहुत सुंदर गार्डन है। जो उसका ख्याल रखता है उस गार्डन का, उसको लगता है कि वो गार्डन ही बहुत सबसे महत्वपूर्ण चीज है उसके लिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे सिंबॉलिक मतलब हैं। उस गार्डन में बहुत बहुत तरह के फूल हैं। हर एक अलग अलग रंगों के फूल हैं। उनमें अलग अलग महक आती है। अलग अलग पक्षी उस गार्डन्स में आते हैं। अलग अलग उसमें तितलियां आती हैं, इंसेक्ट्स आते हैं। आप देख सकते हैं कि उस समय पर नेचर कितनी हार्मनी पे काम कर रही होती है। हर एक चीज की अपनी सुंदरता है, लेकिन वो साथ में काम कर रहे हैं और एक बहुत सुंदर दृश्य बनाते हैं। अगर उनमें से कोई एक भी चीज, कोई एक भी तत्व मिस हो जाए, तब गार्डन उतना सुंदर नहीं लगेगा। तो इसलिए मैं ह्यूमन फैमिली को ऐसे देखती हूँ कि हाँ, हम बहुत अलग हैं, फिर भी लेकिन सबको जब साथ में लाया जाए और हर एक अपनी शक्तिशाली स्थिति में हो, हर एक के पास अपने अपने गुण हो, अपनी विशेषताएं, अपनी शक्तियां हो, तो बहुत सुंदर हो जाएगा। जो इंटरैक्शन होगी वो बहुत नेचुरल होगी, एक म्यूजिक की तरह होगी, एक गीत की तरह होगी। जैसी दुनिया हम चाहते हैं अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं उस दुनिया को लाने के लिए, या उसको कुछ कंट्रीब्यूशन देने के लिए जितना हम कर पाए, ताकि हम इस परिवार को खुश रह पाए, कंफर्टेबल रख पाए, हारमोनियस रख पाए। तो एक दूसरे की जो अलग अलग विचार हैं उनको हम एक्सेप्ट कर पाए। हर एक के गुण बहुत अलग अलग हैं और बहुत महत्वपूर्ण भी हैं। फिर भी देखा जाए तो हर एक इंसान का चेहरा दूसरे इंसान से अलग है। तो यही एक बहुत फिनोमिनल चीज है। हर एक की पर्सनालिटी अलग है। अगर मैं फिर से गार्डन का एग्जाम्पल देखूं, तो हम लोग कई बार एक फूल के चित्र में एक इंसान का चेहरा दिखाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कितने फूलों की अलग अलग स्पीसीज हैं, और वो ये दर्शाती हैं कि इंसानों की भी कितनी वैरायटी है। नेचर हमें जो दिखाती है वो यह दिखाती है कि महक, रंग, साइज, शेप और बाकी सारी चीजें हार्मनी में रह सकती हैं। और अगर वो हार्मनी में होती हैं तो बहुत सुंदर दिखती हैं। अगर हम दुनिया के किन्हीं विभिन्न भागों में देखें, कहीं देखें कहीं वॉर चल रही है, कहीं कोई मुश्किल है, कहीं गरीबी की प्रॉब्लम है, तब हम ये भी देखते हैं कि ये मुश्किलें जो इंसान एक्सपीरियंस करते हैं, हम उसके ज्योग्राफी में भी देख सकते हैं। वहाँ के लोगों के चेहरों में भी दिखती हैं। उनके चेहरे पे दुख दिखता है या क्रोध दिखता है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ हार्मनी लाई जा सकती है, लेकिन जब आध्यात्मिक शक्ति कम हो गई है, तब वो हार्मनी अपने ऑपोजिट रूप में चली जाती है। कोई भी साउंड जो है वो म्यूजिक ना लग के एक डिस्टरबेंस लगती है।
तो इसलिए मेरे लिए यूनिटी, एकता का मतलब है कि ये समझना कि प्रॉब्लम ये नहीं कि कोई सामने वाला बुरा है, लेकिन जिनकी आध्यात्मिक शक्ति कम हो गई है वो बहुत आसानी से कोई बुरी चीज कर सकते हैं, अपने लिए भी और किसी और के लिए भी। और जिन सिचुएशन से, जिन चीजों से हम गुजरे हैं अपनी अपनी जिंदगियों पे, कई मौकों पे, कई बार हमें धोखा लगा है, कई बार हमें निग्लेक्टेड फील हुआ है, कई बार हमें रिजेक्शन मिली है। तो ये जो सारी फीलिंग्स हैं, सारी भावनाएं हैं, ये हमारी एक अंदर की स्थिरता से इंटरफियर करती हैं, ये उसके ऑपोजिट हैं। हम चाहते हैं कि हम किसी से प्यार से बात करें, बट ये फीलिंग्स जो हैं ये उसके रास्ते में आती हैं। जैसे ही ये नेगेटिव फीलिंग्स को भरती रहती हैं तो ये एक नेगेटिव कर्मा भी बनाती हैं। और आध्यात्मिक स्टडी में हम कर्मों के सिद्धांत भी पढ़ते हैं जो बहुत सूक्ष्म हैं। काफी लोग या फिर दुनिया में सब लोग जानते हैं कि कर्मा क्या है, या उन्हें कुछ ना कुछ आइडिया है कि कर्मा क्या है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इसको पढ़ पाए हैं उस पॉइंट तक कि इसकी गुह्य गति जान सके। क्योंकि हमेशा कोई भी डिसहार्मनी जो है वो कई बार कर्मा के वजह से होगी, कोई डिसहार्मनी टाइम की वजह से होगी। और टाइम का मतलब यह है एजिंग होना या कोई चीज डिग्रेडेशन की तरफ जाना। ये एक सच्चाई है जिसे हमें मानना ही पड़ेगा। और तीसरी चीज है डेस्टिनी या किस्मत या तकदीर। हम किसी की तरफ उंगली करके ये नहीं कह सकते कि वो मेरी तकदीर के लिए जिम्मेवार है। हर एक की तकदीर अपनी अपनी है, और उसमें कुछ अच्छी चीज भी होगी और कोई बुरी चीज भी होगी। हम अपनी तकदीर को कैसे हैंडल करते हैं वो ये दर्शाएगा कि हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को, कैसे हम व्यवहार में आते हैं, और ये हमारा कर्म बनाएगा। धीरे धीरे समय हमारी आध्यात्मिक शक्ति को कम कर रहा है। फिर हम ये सोचना शुरू करते हैं कि अगर कितनी भी चीजें गलत हो जाएं, हम किसी और को दोष नहीं दे सकते। तो एक महत्वपूर्ण चीज जो हम सीखते हैं आध्यात्मिक शिक्षा में और प्रैक्टिस में, ये चीज को मान लेना, इन तीन चीजों की सच्चाई को मान लेना, कर्म, समय और तकदीर। कई बार हम धैर्य खो देते हैं अपना, या कई बार हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, या कई बार हमें लगता है कि हमें हाँ बहुत समझ आ गई है हमें इन चीजों की, लेकिन कुछ समय बाद लगता है कि हमें नहीं समझ आई है, तो हम फिर से वापस एक स्टार्टिंग पॉइंट पे जाते हैं। फिर हम सोचना शुरू करते हैं एक ह्यूमन लाइफ के बारे में, अपनी एग्जिस्टेंस के बारे में। तो एक चीज जो हर कोई ढूंढ रहा है वो है सच्चाई। सच्चाई एक आसान शब्द नहीं है, इसको इसके साथ काम करना, सच्चाई को बयान करना भी बहुत एक मुश्किल चीज है। कुछ कवियों ने कहा है, ट्रूथ इज ब्यूटी, सच्चाई सुंदर है। और कोई कुछ भी अच्छाई को हम सच्चाई कह सकते हैं, दैट समथिंग गुड इज ट्रूथ। तो ये कुछ कंसेप्ट या आइडियाज जो ह्यूमन लाइफ की सच्चाई के बारे में परमात्मा को ही पता है, और हमें भी पता चल सकते हैं, लेकिन ये बहुत सूक्ष्म है, ये बहुत गहरे हैं। तो हम अपनी काफी सारी जिंदगी इन्हीं चीजों को समझने में लगा सकते हैं। और जो हम करते हैं उसके लिए हम ही जिम्मेवार हैं, इसको मान लेना है।
और किसी और को दोष देना जो हमारे साथ हुआ या तकदीर को दोष देना। तो ये जो एक्सप्रेशन है सच्चाई को मान लेना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम ये मान लें तो हम अपने पास्ट को छोड़ सकते हैं, उससे मुक्त हो सकते हैं। इस चीज को हम अपनी आध्यात्मिक शिक्षा में बहुत पढ़ते हैं कि हमें उन चीजों को एक्सेप्ट कर लेना है, उन्हें मान लेना है। कुछ चीजें जो हमारे पास्ट में हुई उन्हें मान लेना है। ऐसा क्यों करना है? ताकि हम उन चीजों से मुक्त हो पाएं और आगे बढ़ सकें। अगर हम ऐसा देख पाए कि कोई भी दोषी नहीं है तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। इसलिए मेरे लिए आगे की दिशा में देखना मतलब परमात्मा की दिशा में देखना, पीछे की दिशा में देखना मतलब एक ऐसी दिशा में देखना कि जिसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते, इसलिए इसका कोई मतलब नहीं। उसके लिए केवल हम स्ट्रेस पैदा कर सकते हैं अपने लिए। एक बहुत अच्छी चीज जो हम सीखते हैं कि एक एक सेकंड जो पास हुआ उसे हमने छोड़ना है। वो गया, वो हो गया। एक चीज दादी जानकी ने मुझे सिखाई थी, हर एक क्षण में उसी में प्रेजेंट रहना है ताकि हमारा भविष्य हमारे प्रेजेंट में आ सके और पास्ट से हम फ्री होते चले जाएं। हर एक क्षण, हर एक क्षण हम कॉन्शियस रह सकते हैं, हार्मनी देख सकते हैं अपने रिश्तों में, और तभी हम एक दूसरे के साथ पवित्र भावनाएं रख सकेंगे और अच्छी विशेष रख सकेंगे। हर एक सोल एक एक्टर है, ये ड्रामा है, हर किसी को अपना पार्ट मिला हुआ है। हम ये नहीं कह सकते कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको वैसा करना चाहिए। जब हमें ये आध्यात्मिक शिक्षा मिल जाती है तब हम ऐसा कह नहीं सकते, जो है जैसा है वैसा ही है, जैसा हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं। आपको उसे प्रोसेस करना है और उसे लेट गो करना है। ये सिद्धांत कि हम हर एक को प्योर पीसफुल एक ज्योति का बिंदु देखें, तब हम ये इसको समझ सकते हैं कि हमारे रिश्तों में हार्मनी आ सकती है। ये चीज बहुत सिंपल है बट इसमें बहुत मीनिंग है। ये एक प्रैक्टिस की जा सकती है। ये प्रैक्टिस हार्मनी में लाने के लिए बहुत हेल्प करेगी। चाहे आजकल डिसहार्मनी है लेकिन हार्मनी संभव है। दूसरी चीज जो मदद कर सकती है, जब हम सोल कॉन्शियस या देही अभिमानी होने की प्रैक्टिस करते हैं, जब हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हम परम पिता परमात्मा के साथ कैसे कनेक्ट हों, क्योंकि उस प्रैक्टिस में हम परम पिता परमात्मा की शक्ति अपने अंदर भर रहे हैं और वो वाइब्रेशन हम अपने एटमॉस्फेयर में दे सकते हैं। तब हम ऐसी स्थिति में होते हैं जो हमारी एक ओरिजिनल स्थिति है। तब इजी हो जाता है कि हम सामने वाले को भी अपना भाई अपनी बहन के रूप में देख सकें, जो वो भी एक सुंदर आत्मा है। तब हम ये नहीं देखते कि वो क्या कर रहा है, उसका रोल क्या है, वो कैसा है। तब हम उनमें अंतर नहीं देखते, तब हम उनमें समानताएं देखने लगते हैं। एक और एक कॉन्सेप्ट है, कई बार हम एक जेंडर को ज्यादा महत्व देते हैं, दूसरे को नहीं देते। कुछ लोग स्किन के कलर को देख के बिहेव करते हैं, कुछ लोग सोशल स्टेटस को देख के उसमें आ जाते हैं,
कुछ लोग पढ़ाई कैसी है, कुछ लोग डेजिग्नेशंस कैसे हैं, पैसे कितने हैं, किस देश से हैं, किस धर्म से हैं, इन सब बातों में आ जाते हैं। इन सब बातों का इंसान कैसा है उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। तो एक आत्मिक दृष्टि जिसके बारे में सीखते हैं हम, वो हमें सिखाती है ये देखना कि इंसान कौन है, ना कि ये देखना कि वो कैसे हैं, क्या करते हैं, क्या पढ़ते हैं, और फिर ये देखना कि मैं कौन हूँ। मैं पवित्र शांत आत्मा हूँ, लेकिन वो सामने वाले से अलग है। वो भी सामने वाला भी आनंदमयी आत्मा है। ये चीज हम में कॉमन है, फिर भी हम में कुछ कुछ गुण जो हैं वो अलग भी हैं। तो हम लक्ष्य क्या है? लक्ष्य ये है कि उन अंतरों में रहते हुए भी उसमें एंगेज करना, लेकिन एक सुंदर तरीके से, एक हारमोनियस तरीके से, ताकि एक ऐसी सिचुएशन जिसमें बहुत अंतर दिख रहे हैं, वो अंतरों को कम करके एक समान स्थिति बनाई जा सके। ये काम कोई एक दिन का नहीं है, ये काम पूरी जिंदगी का है। और इसको हम कंपेयर कर सकते हैं अपने गार्डन को हम कैसे मेंटेन करते हैं। हम देखते हैं कि मौसम कैसा है, उसको धूप चाहिए या फर्टिलाइजर चाहिए, कुछ चीज बड़ी हो गई है, हमें उसे काटना है, कुछ पौधों को फिर से लगाना है, कुछ देखना है कि कीड़े मकोड़े या कोई बीमारी तो नहीं आ रही है। मतलब हमें उस गार्डन की बहुत केयर करनी है। वो गार्डन को हम समझ सकते हैं कि वो हम खुद हैं, वो हमारा परिवार है, वो हमारा देश है, पूरी दुनिया है। और अगर हम ऐसा समझते हैं, और ऐसे ही एक एक्सप्रेशन है अ गार्डन ऑफ अल्लाह, क्रिश्चियनिटी में कहा जाता है गार्डन ऑफ ईडन। इसका मतलब एक गार्डन पौधों का नहीं, पर एक ये ह्यूमंस के समाज को दिखाता है, जिसमें हर एक इंसान के गुण पूरे भरे हुए हैं, और अपने गुणों के साथ वो हर एक के साथ बहुत हार्मनी में रहता है। अगर ऐसा है तो सब कुछ ठीक लगता है। यही सारी चीजें महत्वपूर्ण है याद रखने की। हाँ बिल्कुल, हम भूल जाते हैं, लेकिन हमें इन्हें याद रखना चाहिए, याद रखना जरूरी है। तो हमें ये समझना ही कौन सी चीजें हमें ये भुला देती हैं। और काफी इसका एक कारण ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा समय हम कर्म इंद्रियों से ही चीजें देखते हैं। हम देखते हैं कि सामने वाला आदमी है या औरत है, गरीब है या अमीर है, उनके स्किन का रंग क्या है। हम चीजें अपने इंद्रियों से देखते हैं, और मन में ये चीजें भर जाती हैं, और इन्हीं चीजों के बेसिस पे फिर हम बिहेव करने लगते हैं। तो ये हमारी ओरिजिनल स्थिति से बहुत अलग है। हम इसे बॉडी कॉन्शियसनेस या देह अभिमान कहते हैं। और जिस तपस्या को हम सीख रहे हैं इस आध्यात्मिक शिक्षा में, वो ये कहती है कि हमें एक आत्मिक दृष्टि से देखना है, कि हम एक आत्मा है और बाकी सब भी आत्मा है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमें ऐसी चीज देखनी है जो दिख नहीं रही है, जो पदार्थों से नहीं बनी है, लेकिन हमारी नेचुरल कंडीशन जो बन चुकी है वो इंद्रियों से देखने की बन चुकी है। इसलिए हमें बार बार ये मेहनत करनी है वापस ऐसा देखने की, जो चीज नहीं दिख रही है, जो सूक्ष्म है, जो सच्ची चीज है। और जो दिख रहा है वो एक अपीयरेंस है।
और ऐसा कहा भी जाता है कि अपीयरेंस इज नॉट रियलिटी, मतलब जो दिख रहा है वो सच्चा नहीं है। एक किताब को हम उसके कवर से जज नहीं करते। जो चीज सामने दिख रही है, इंसान की जो फॉर्म दिख रही है, जैसा वो दिख रहा है, जैसे हम उसको सुन रहे हैं, वैसा नहीं है। चाहे हम ये बातें हर एक दिन सुनते हैं, लेकिन ऐसी इस आत्मिक दृष्टि से देखना मुश्किल है। हर समय ये प्रैक्टिस करनी है कि हम एक सूक्ष्म स्थिति को देख पाएं। इसीलिए हमें मेडिटेशन की जरूरत है, क्योंकि जब हम मेडिटेशन कर रहे होते हैं, हम शक्ति ले रहे होते हैं ताकि हम आत्मिक दृष्टि से देख सकें। और इसमें शक्ति भी बहुत चाहिए, क्योंकि इसमें हमें ज्यादा शक्ति चाहिए, मैग्नेटिक शक्ति, पदार्थों की मैग्नेटिक शक्ति से। जो भी हम देखते हैं, जो फिजिकल पदार्थों को हम देखते हैं, उनमें एक मैटर की शक्ति है। अगर आप किसी को कहें कि 10 मिनट के बाद आप खत्म हो जाएंगे, तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत जुड़ाव है, जो अटैचमेंट है, अपने शरीर के साथ जो अटैचमेंट है, वो इतनी मीनिंगफुल है कि हम समझते हैं कि हम शरीर ही हैं। हम शीशे में देखते हैं तो हम कहते हैं ये मैं हूँ। हम फोटो देखते हैं तो कहते हैं ये मैं हूँ। ऐसा करने से ये इतना नेचुरल हो चुका है और इतना जल्दी हम इस तरीके से आंसर करते हैं। लेकिन जितनी हम आध्यात्मिक शक्ति जमा करते रहते हैं, उतना हम पदार्थों को देखने से दूर रहते हैं। इसमें बहुत मेहनत लगती है, इसमें बहुत समय भी लगता है इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए, जब तक आपकी नेचुरल स्थिति ही आत्मिक दृष्टि वाली बन जाए। तो हम एक ऐसे पॉइंट से जा रहे हैं जहां हमारी आध्यात्मिक शक्ति बिल्कुल ही खत्म होने वाली है। उस पॉइंट तक जाना कि हर एक की शक्ति, आध्यात्मिक गुण भर चुके हैं, पूरी तरह से शक्तिशाली बन चुके हैं, और वो नेचुरली देही अभिमानी बन चुके हैं। तो ये हमारी मेहनत है, ये हमारा पुरुषार्थ है। हमें अपने आप को बार बार याद कराना है। हम हर दिन पढ़ते हैं, हम हर दिन सुनते हैं, हर दिन गलतियां भी करते हैं। तो अपने आप के साथ भी बहुत धैर्य रखना है, और हर एक के साथ भी बहुत धैर्य रखना है। देखा जाए तो परमपिता परमात्मा में सबसे ज्यादा धैर्य है। हमें लगता है कि हमें 1 साल में ये चीज कर लेंगे, या 5 मिनट में ये चीज कर लेंगे, ये बहुत आसान है। लेकिन ऐसा पुरुषार्थ करना, ऐसी देह अभिमानी से देही अभिमानी में आना, एक कमिटमेंट है। इसमें पूरी जिंदगी भी लग सकती है, लेकिन ये एक सफर है। हम सारे इस सफर में हैं, लेकिन हम एक टनल के एंड पे हम लाइट देख सकते हैं, एक आशा की किरण देख सकते हैं, एक ऐसी आशा की जहां हर कोई आध्यात्मिक शक्ति से भरा हुआ है। तो इसलिए हम इस यात्रा को पिलग्रिमेज कहते हैं। ये एक यात्रा है। हम सारे इस यात्रा में साथ हैं। इस यात्रा में काफी चीजें होती हैं। कई बार अच्छा समय होता है, कई बार बुरा समय होता है, मुश्किल समय होता है, हम गिरते हैं, कई चीजें होती हैं। लेकिन आशा की किरण हमेशा हमारे सामने रहती है। हमें उसी की तरफ जाना है, और बस यही एक आशा की किरण हमें एकता में ला सकती है। हमारे भिन्न भिन्न अंतर होने के बजाय हम फिर भी एक एकता में आ सकते हैं। एकता ही हमारा डेस्टिनेशन, हमारा लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य यही है कि हम जान जाएं कि हम कौन हैं, और एकदम कनेक्ट हो जाएं उस सुप्रीम गाइड से, जो हमें कहते हैं
मेरे पास आओ, मुझसे शक्ति लो, आपकी विजय होगी ही होगी। आप समझ पाएंगे एक दूसरे को, आप समझ पाएंगे अपने आप को, इन मुश्किलों के पार जा सकते हैं आप। इनको जानना ही हमें बहुत मदद करता है। इसको जानना हमें शक्ति देता है, हर क्षण शक्ति देता है। जो बाहर की शक्तियां हैं जो हमें अपनी तरफ खींचती हैं, ये सुंदर संकल्प हमें उनको ओवरकम करने की शक्ति देते हैं। हमें लगता है कि हो पाएगा या नहीं, कई बार डाउट आता है, तो डाउट आना नॉर्मल है। इसके लिए हमें बहुत एक्सपीरियंस चाहिए। हमें अपनी कमजोरियों को डील करने के लिए, अपनी डाउट्स को डील करने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए, अनुभव चाहिए। जब अनुभव हो जाएगा तब हमें लगेगा कि हम इस मुश्किल के पार जा सकते हैं। तो ये एक चरित्र निर्माण की प्रोसेस है। कोई भी परफेक्ट नहीं है, ये हम सब जानते हैं। हम परफेक्शनिज्म में नहीं जाना चाहते। परफेक्शनिज्म और सुंदरता सेम चीज नहीं है। परफेक्शन को हम बैलेंस की तरह देख सकते हैं। कई तरीकों में हम सभी अनबैलेंस्ड हैं। एक साइड बहुत अच्छी चल रही है, दूसरी साइड अच्छी नहीं चल रही है। कोई गुण अच्छा चल रहा है, कोई गुण अच्छा नहीं चल रहा है, और कोई अगर बैलेंस में नहीं है तो हार्मनी में नहीं है। तो ये बहुत बड़ा काम है अपने आप के साथ हार्मनी में आना और सामने वाले के साथ भी हार्मनी में आना। लेकिन बैलेंस एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है इसमें। हमने एक एम और ऑब्जेक्ट बनाया है अपने लिए, या लक्ष्य बनाया है, और हम लक्ष्मी नारायण की फोटो देखते हैं। ये एक परफेक्टली बैलेंस्ड ह्यूमन बीइंग को दर्शाते हैं कि वो भरे हुए हैं शक्तियों से। उनमें हर रंग भी है, उनका मन बैलेंस्ड है, जो शब्द हैं वो मीनिंगफुल हैं, हर एक कर्म में प्रेम पूर्वक होता है, हर एक में शक्ति है, ना बोलने की भी या हाँ बोलने की भी, अपने आप के लिए खड़े होने की भी, फ्लेक्सिबल होने की भी। हर एक शक्तियां जो हैं वो पूरी भरी हुई हैं। ये शक्तियां हमारी मदद करती हैं वहां पहुंचने के लिए जहां तक हम जाना चाहते हैं। और जो अनुभव हमें होते हैं वो हमें ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाते हैं, कम रिजिड करते हैं। हम हार्मनी और एकता और रिजिडिटी साथ में नहीं रह सकती। हमें फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा, अपने साथ भी, दूसरों के साथ भी, क्योंकि ये एक सफर है, ये लंबा सफर है। हम अभी अपने लक्ष्य तक पहुंचे नहीं हैं, लेकिन हमें अपने आप में भरोसा रखना है, विश्वास रखना है कि मैं पहुंच जाऊंगा, मेरे भाई और बहन भी पहुंच जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए हम पहुंच जाएंगे, हम उसको प्राप्त कर लेंगे। ये विश्वास, ये भरोसा बहुत महत्वपूर्ण है हमें चलते रहने के लिए। छोड़ देना या गिव अप कर देना नहीं अच्छा। कई बार चीजें बहुत मुश्किल हो जाती हैं, कई लोग छोड़ देते हैं। इसलिए ये बहुत अच्छी बात है कि हम किसी को देखें, अगर किसी को बहुत कुछ चीज में मुश्किल लग रही है तो हम उनकी मदद करें आगे बढ़ने के लिए। कोई मुश्किल सिचुएशन उनके सामने आ गई है, हम उन्हें मदद करें ताकि वो उसको क्रॉस कर पाए। तो यही एक दूसरे के लिए प्यार है, एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे की मदद करना, लेकिन किसी और पे डिपेंड ना होना। दादी जानकी ने ये बहुत महत्वपूर्ण चीज मुझे सिखाई
कि हम अपनी आध्यात्म प्रैक्टिस कभी खत्म नहीं कर सकते सामने वाले के व्यवहार की वजह से। आप जो जिस दिशा में जाना चाहते हैं, सामने वाला क्या कर रहा है उसका कोई लेना देना नहीं है। हाँ, हम काफी स्थितियों से गुजरते हैं। जब जैसे ही हमारा जन्म होता है, एक आध्यात्मिक जन्म होता है, जब हम शुरू ही करते हैं, तब हम बचपन, फिर थोड़े बड़े होते हैं, फिर मैच्योर होते हैं। तो ये सारे स्टेजेस हैं जिनसे हम निकलते हैं, और हर किसी को निकलना ही है इनमें, और हमें अपने आप की खोज करते रहना है इन स्टेजेस में। क्योंकि जिस लेवल पे आज हम आध्यात्मिक प्रैक्टिस कर रहे हैं वो कल के लेवल के लिए नहीं है, कल हमें उसे बढ़ाना है। तो चाहे हमें वापस शुरुआत पे ही जाना पड़े या उस एक और लेवल ऐड करना पड़े, तो ये सब सही है, हमें ये सब करना चाहिए। नहीं तो हम एक प्रोग्रेस की फीलिंग अनुभव नहीं कर पाएंगे, और अगर हम प्रोग्रेस की भावना को अनुभव नहीं करेंगे तो हम छोड़ देंगे। क्योंकि अब हम में शक्ति भरने लगी है। जब हमें लगता है कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं तो हम में शक्ति भरती है। और ये कहना कि जब तक जो मैंने किया वो ठीक था, लेकिन अब के समय के लिए वो जरूरी नहीं लग रहा है, मुझे अपना लेवल बढ़ाना है, मुझे या कोई अलग लेवल ढूंढना है, तो ये एकदम ठीक है। अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को देखते रहना भी एक प्रोग्रेस है। हम हमेशा बचपन में नहीं रहते, हम हमेशा बूढ़े ही नहीं रहते, हम हमेशा मैच्योर ही नहीं रहते। हर एक स्टेज अलग अलग होती है। हर एक सिचुएशन को हम अलग अलग स्टेज में अलग तरीके से देखते हैं। हमारी समझ बढ़ती रहती है। धीरे धीरे इसको विजडम कहते हैं, प्रज्ञता कहते हैं। कुछ लोगों को हम कहते हैं कि हाँ वो बहुत प्रज्ञ हैं, बहुत वाइज हैं, लेकिन ये धीरे धीरे आता है, ये अपनी सच्चाई में रहने से आता है। और कई मेरे आध्यात्मिक साथी जो हैं वो ये कहते हैं कि हमें ऑथेंटिक बनना है, हमें सच्चा बनना है। कई बार आत्मा को लगता है कि ये वो काम वो बहुत बार बार कर रही हैं और उसका एक मतलब कम होने लगा है, उसकी सेटिस्फैक्शन कम होने लगी है। तो इसका मतलब ये है कि मुझे अपने साथ बैठना पड़ेगा, अपने आप को देखना पड़ेगा। ये एक साइन है कि मुझे अब और सूक्ष्म लेवल पे जाना है, एक और गहरे लेवल पे जाना है। हमें थोड़ी सी स्ट्रगल भी महसूस हो सकती है, लेकिन इसी को ही हम तपस्या कहते हैं, तपस्या को ही हम स्ट्रगल कहते हैं। इसे करना बुरी चीज नहीं है, बस ये एक चीज है। तो ये कुछ विचार थे मेरे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, यूनिटी का, हार्मनी का, अनेकता में एकता का, एक इंसानियत के परिवार का, आध्यात्मिक परिवार का। ये एक बहुत बड़ा एडवेंचर है जहां हम थे और जहां हम जाना चाहते हैं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओम शांति। धन्यवाद, ये बहुत अच्छा था। आपने यूनिटी को हार्मनी के साथ कनेक्ट किया, बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी दिए। एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि जो यूनिटी है वो समानता नहीं है, एकता समानता नहीं है। हम किसी ना किसी तरीके से जुड़ सकते हैं बट समानता नहीं है। एक सवाल है, शायद आप हमें समझा पाए। मेरी कंपनी में मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि सारे स्टाफ को एकता में रख सकूं, लेकिन उनमें अपने अपने अंतर आ जाते हैं। मेरे लिए उनके साथ डील करना बहुत मुश्किल हो जाता है कंपनी में। मैं ऐसा क्या करूं कि वो हमेशा एकता में रहें? कई बार लोगों को लगता है कि मिलिट्री की तरह हमें रहना है।
हम ये चाहते हैं कि हर कोई ऑर्डर फॉलो करे, हर टाइम पे वो चीज हो जाए। कंपनीज, संस्थाएं या ऑर्गेनाइजेशंस 19वीं सदी में जब ये शुरू हुई, तब वो शुरू की गई मिलिट्री के मॉडल पे। कई लोगों को लगता है कि ये सब रैंक के बराबर है। अगर रैंक बड़ा है तो कम रैंक वालों को फॉलो करना पड़ेगा। उस समय पर ये सही था, लेकिन आजकल के समय में लोग इस तरह से नहीं ऑपरेट करना चाहते। ये एक मिलिट्री सेटअप की तरह लगता है। काफी संस्थाओं, ऑर्गेनाइजेशंस में इनोवेशन आई है। लीडर्स ने कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। उन्होंने कई अलग अलग तरीके निकाले हैं। मैं एक बहुत इंस्पिरेशनल ऑर्गेनाइजेशनल लीडर के बारे में शेयर करना चाहूंगी। मैं दादी प्रकाश मणि के बारे में शेयर करना चाहूंगी। मैं उनके साथ करीब 7 साल तक रही। मैंने उन्हें बहुत करीबी से देखा कि वो ये सब कैसे करती हैं। वो एक बहुत बड़ी संस्था की हेड थी, एक ऐसी संस्था जिसमें लोग अलग अलग जगह पे हैं दुनिया में, और एक ऐसी संस्था जो बहुत छोटी से बहुत बड़ी बन गई थोड़े ही समय में। जो चीज मुझे बहुत अच्छी लगती थी उनके लीडरशिप के तरीके में, वो ये थी कि वो बहुत अच्छी लिसनर थी। वे सुनती बहुत धैर्यता से थी, और वो बहुत अप्रोचेबल थी। जैसे कि वो अपने आप को हर दिन ऐसी जगह पर रखती थी ताकि जो भी लोग जो अलग अलग सेक्शंस के इंचार्ज हैं वो उनसे मिल सकें, पर्सनली मिल सकें अगर वो चाहे तो। और उन्हें वो पता था, अगर किसी के मन में कुछ चल रहा है कि ये इश्यू है, ये प्रॉब्लम है, वो उनके पास जा सकते थे। और अगर ऐसा कुछ होता था, अगर किस निर्णय चाहिए होता था, वो कभी भी ऐसे ही निर्णय नहीं देती थी। वो क्या करती थी, वो उस मामले के बारे में सोचती थी, और वो ये सोचती थी कि कौन सा डिपार्टमेंट और सेक्शन उस प्रॉब्लम से अफेक्ट होगा। फिर वो उन डिपार्टमेंट्स के हेड्स को बुलाती थी, उनसे सुनती थी, उनसे पूछती थी कि मुश्किल क्या आ रही है, मामला है क्या। वो सिचुएशन को बहुत अच्छे से समझती थी। वो ये मानती थी कि जो लोग अलग अलग एरियाज के इंचार्ज हैं उन्हें पता है कि सिचुएशन क्या है, उन्हें पता है वो क्या काम कर रहे हैं। तो उनका नजरिया और क्या चाहिए उस सिचुएशन में, उन ये जानकारी वो बहुत अच्छे से गैदर करती थी। अपने मन में ये इंफॉर्मेशन वो फिर प्रोसेस करती थी, और वो कोई संस्था में किसी भी कोई भी लेवल पर हो, हर कोई उनके पास जा सकता था। ऐसा नहीं था कि आप उनसे डायरेक्टली नहीं मिल सकते, किसी के थ्रू जाना पड़ेगा। वो हमेशा हर किसी के लिए अप्रोचेबल थी। ये बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि लोगों को लगता था कि हाँ, मुझे वैल्यू किया जा रहा है, मेरे नजरिए की भी वैल्यू है, और ये मेरी जिम्मेदारी भी है। तो इस संस्था में केवल ऑर्डर देना और उनको फॉलो करना ही नहीं दिखाया जाता, ये एक 2 वे प्रोसेस है, दोनों तरफ काम होता है। हर एक का नजरिया सुनने के बाद दादी एक प्रोविजनल निर्णय देती थी। फिर वो सबको बुलाती थी, ये कहती थी कि ये मेरा प्रोविजनल निर्णय है, क्या आप सब इससे खुश हैं, सहमत हैं। और मेजॉरिटी टाइम लोग मानते थे, और कुछ लोग नहीं भी मानते थे।
जो लोग नहीं मानते थे वे उनके साथ बैठ के पूछती थी कि क्या इस मामले में क्या मुश्किल है। फिर वो एक और डिसीजन बनाती थी जिनमें जो लोग कंफर्टेबल नहीं थे पहले, उनके पॉइंट्स को भी लिया गया हो। इस तरीके से वो कंसेंसस ला सकती थी, एक मत ला सकती थी, और हर किसी को लगता था कि वो उस निर्णय के प्रोसेस का पार्ट बने हैं, हर किसी को पूछा गया है। कई लोगों को बहुत जानकारी होती है लेकिन वो ऊंचे रैंक पे नहीं होते हैं, तो उस जानकारी को लिया जाता था निर्णय बनाने में, तो लोगों को अच्छा महसूस होता था। इसी चीज की वजह से वो सहायक बनते रहते थे, क्योंकि उन्होंने खुद कहा होता था कि हाँ, मैं इस निर्णय को मानता हूँ और इसको पालन करने के लिए मैं जो चाहिए वो करूंगा, मैं अपनी सहायता दूंगा। हर एक के साथ वो काम भी करते थे, कुछ त्याग करना पड़े वो भी करते थे, अपने दिल से करते थे। मुझे ये लीडरशिप बहुत पसंद है, इसको कंसल्टेटिव लीडरशिप कहा जाता है। मैं अपने अनुभव से कह सकती हूँ कि एक मत होना बहुत जरूरी है। और जब एक संगठन है जिसमें हर एक कोई एकता है, चाहे वो उनके पास अलग अलग स्किल्स हैं, विशेषताएं हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, तो ये एक कॉम्प्लेक्स मशीन की तरह हो जाता है कि वो एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं, मिल रहे हैं, लेकिन वो एक मशीन की तरह काम कर रहे हैं। तो ये भी Right. मेरा एक मॉडल है। So it was a big reminder of Dadi Prakash Mani, as you rightly mentioned, and I think तो she इस एग्जाम्पल से हमें दादी प्रकाश मणि के बारे में सोचने का मौका मिला। accept people तो as they are. हारमनी को हिंदी में हार मनी भी कह सकते हैं, हार मान लिया, एक्सेप्ट डिफीट। तो ये चीज वो बहुत खुल के कहती थी कि हार मानो, खुश होकर हार मानो। कुछ लोगों के लिए हार मानना अच्छी चीज नहीं लगती, लेकिन वो कहती थी कि हार माननी पड़े तो भी खुशी खुशी मानो। तो ये ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे साथ कुछ खराबी है, कि मुझ में कुछ मिसिंग है, क्योंकि आप इस सब को लेके बहुत लाइट हैं, बहुत हल्के हैं। Quite a few questions in the chat box, and they are very long और ones. भी काफी Right? सवाल हैं, लंबे सवाल हैं। So someone is asking that कोई पूछ रहा है, that there is real unity in our family. क्या Maybe there आपको was लगता feelings of है कि सच्ची superiority एकता है एक परिवार caused में? by hierarchy, क्योंकि कई भावनाएं हैं कि मैं सुपीरियर हूँ, मैं not अच्छा love हूँ and या support दूसरा given अच्छा नहीं है। unconditionally. तो एकता क्या Or है? is क्या competition? अनकंडीशनल प्यार नहीं है? There's a lot of things written. तो ये एक ह्यूमन नेचर है, लेकिन हमारे पास ऑप्शंस हैं। हम देख सकते हैं कि कुछ चीज अच्छी नहीं लग रही तो हम बात करें उसके बारे में, हम कंप्लेंट करें, क्योंकि कई चीजें हमारी प्रायोरिटीज हैं। हमें लगता है कि ये चीज प्राथमिक है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत नॉर्मल चीज है, लेकिन जब आप इस चीज के साथ काम करते हैं कि अच्छा, मुझे कोई ऐसा चीज दिख रहा है जो ठीक नहीं है, मुझे दिख रहा है कि ऐसा है वैसा है, उसकी वजह से ऐसा हो गया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा इस वजह से उस वजह से, तो हम कर क्या रहे हैं ऐसा? परमात्मा कई बार कहते हैं कि हम अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ऐसा कह के। ये स्टेटमेंट, ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये सच्चाई है। सच्चाई कड़वी कई बार लगती है हमें, तब हमें देखना पड़ता है कि हाँ, ठीक है, हमें बहुत सारी चीजें जो हैं वो गलत लग सकती हैं, तो गलती ढूंढना भी एक ऑप्शन है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। आप गलती भी ढूंढ सकते हैं, आप उसका कोई सॉल्यूशन भी ढूंढ सकते हैं।
तो पहले हम ये कहें कि ठीक है, ये जो है वैसा है। अगर बारिश हो रही है तो मैं आकाश को ये नहीं कह सकता कि नहीं आज मत बरसो, या वेट करो, या अब मुझे तैरना पड़ेगा। तो पहली चीज एक्सेप्ट करना है कि जो जैसा है वैसा है। राजयोग क्या है? राजयोग है उन सिचुएशंस में रहना जो कंफर्टेबल नहीं है। लोग ऐसा कहते हैं सहज राजयोग। मैंने सहज का मतलब ढूंढा। काफी लोग मुझे पूछते हैं कि सहज राजयोग है क्या, तो मैंने इस शब्द का मतलब ढूंढा। आजकल सब कुछ ऑनलाइन डिक्शनरीज पे मिल जाता है। मैंने ढूंढा कि बहुत बहुत अलग इसके मतलब हो सकते हैं। एक मतलब जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम ये जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो लोगों और सिचुएशंस के बीच में रह के कर रहे हैं। कई बार बाबा हठ योग या संन्यास योग का वर्णन करते हैं। हठ योग या संन्यास योग आइसोलेशन में या अलग रहकर किया जाता है। हम जो अपनी प्रैक्टिस करते हैं हर एक तरह के लोगों के बीच में रह के करते हैं, हर एक गुणों के बीच में रह के करते हैं, बहुत कार्मिक अकाउंट्स के बीच में रह के करते हैं। तो ये बिल्कुल भी सहज नहीं है। लेकिन बाबा ने हमें ये सच्चाई समझाई है। आप देखें कि हम कैसे हैं, हमारी मान्यताएं क्या हैं, हमारे बिलीफ्स क्या हैं, और उनके साथ भी रहना है जिनके मान्यताएं बिलीफ्स सेम नहीं है। हमें लगता है कि ये तो संभव नहीं है, लेकिन करना तो है ही। अगर हम कहें हाँ, हम कहते हैं हाँ लेकिन, या हम कहते हैं हाँ नहीं, लेकिन अंत में हमें अपना एक रास्ता खुद ही निकालना है, ताकि हम अपने आप के साथ भी ठीक रह सकें और हर किसी के साथ भी ठीक रह सकें। क्योंकि हम एक ही प्लैनेट पे रहते हैं। और मैं कई बारी ऐसा देखती हूँ कि एक बड़े से परिवार में एक बीके एक छोटा सा परिवार है। बाकी दुनिया में बहुत डिसएग्रीमेंट्स हैं, लड़ाई है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम अपने आप में से चीजें सोल्यूशन निकाल लें इस छोटी दुनिया में, इस छोटे बीके की दुनिया में, तो उससे ये संभव हो जाएगा कि बाकी दुनिया भी ऐसा कर पाएगी। मुश्किल सिचुएशंस अच्छी तो नहीं लगती, लेकिन ये हमें सीखने का मौका देती हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हमें कहाँ मुड़ना है, कहाँ हमें कुछ छोड़ना है। तो सारा खेल इसमें 8 शक्तियों का है। बहुत संभावनाएं हैं कि हमें क्रिटिसिज्म भी मिले, लेकिन उसके बीच रह के काम करना है, उसको ओवरकम करना है, और अंत में हार मानी याद रखना है। और अगर हार माननी पड़े तो मान सकते हैं। और भी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो परिवार से रिलेटेड हैं। कोई ऐसी आत्मा है जो नई आई है ज्ञान में। मेरे परिवार में आध्यात्मिकता नहीं है और मैं इसको फॉलो करती हूँ, तो वो मेरा बहुत विरोध करते हैं। तो अगर मैं उन्हें फॉलो करूं तो मुझे अच्छा नहीं लगता, और अगर मैं उन्हें मना करूं तो भी मुझे गिल्टी लगता है। अगर मेरे परिवार में कोई भी आध्यात्मिक नहीं है तो मैं इस सिचुएशन से कैसे गुजरूं? हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई ऐसा होता है कि जो हमें अप्रिशिएट नहीं करता। अगर मैं ये सोचूं कि मुझे तभी खुश रहना है कि जब मेरी तारीफ हो रही है, जब मैंने अच्छा काम किया है, इसका मतलब ये है कि मैं इतना सक्षम या इतना वाइज नहीं हूँ, या अभी इतनी समझ नहीं
डेवलप हुई है। हमें ये समझना है कि ये आध्यात्मिक प्रैक्टिस जो मैं कर रही हूँ वो कोई प्रशंसा के लिए नहीं है, प्यार पाने के लिए नहीं है, या बुरा ना महसूस होने के लिए नहीं है। मैं आध्यात्मिक प्रैक्टिस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये करना सही है। अगर आपको लगता है ये सही है तो आपको ये करना है, उन्हीं लोगों के बीच रहते हुए जो इस चीज को नहीं मानते। बस एक तरीका निकालना है और हमेशा याद रखना है कि ये मैं कर रही हूँ, अपनी मर्जी से कर रही हूँ, अपने बेनिफिट के लिए कर रही हूँ। बहुत एडजस्टमेंट लगती है, किसी को अच्छा नहीं लगता है तो उसके साथ भी हमें रहना पड़ता है, अलग अलग तरीके निकालने पड़ते हैं। उनका भी एक अधिकार बनता है कि वो आपको टेस्ट करें। अगर आप उसके बावजूद भी अपनी आध्यात्मिक प्रैक्टिस जारी रखते हैं, चाहे कोई आपके बारे में कुछ भी कहे, कुछ भी करे, तभी आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। लेकिन हम 1 मिनट में मिल जाए, 1 साल में मिल जाए, 10 साल में मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। बहुत समय के अनुभव के बाद, बहुत समय की प्रैक्टिस के बाद वो आपको देखते हैं, तभी वो इस बात को मान पाएंगे। लेकिन उन्हें भी टाइम चाहिए ताकि वो आपको टेस्ट कर सके। हमारे पास और थोड़े मिनट्स हैं, इसलिए और क्वेश्चंस लेंगे। आपने 5 तत्वों की बात की सोल के, पीस, प्योरिटी, पावर, लव एंड ब्लिस। तो कोई पूछ रहा है कि नॉलेज और हैप्पीनेस के बारे में क्या? वो कह रही हैं कि ये तत्व नहीं है, ये एक आउटकम है। नॉलेज एक पर्सनल गुण नहीं है सोल का, और खुशी जो है वो कर्मों के रिजल्ट से आती है। कई लोग अलग अलग तरीके से इसको समझाएंगे। जैसे मैंने कहा कि नेचर के 5 तत्व हैं और सोल के भी 5 तत्व हैं, इसलिए मैंने इस एग्जाम्पल दिया। इसमें कुछ सही या गलत नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा समझाना अच्छा लगता है। Yeah, so another question is, you mentioned about the light at the end of the tunnel. So someone आपने is आशा asking, की किरण की how बात can I की। light my entire tunnel, not at the end? आप कि मैं हमेशा ही आशा की किरण नहीं, आशा की लाइट हमेशा कैसे रहे, ये कैसे समझ बना सकता हूँ। तो टनल एक ऐसी चीज है जिसमें हम एक जगह से एंटर करते हैं, दूसरी जगह से निकलते हैं। तो ये जो एक्सप्रेशन है लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, ये एक एग्जाम्पल देने के लिए यूज किया जाता है। इसका मतलब ये है कि आप कोई एक ऐसी चीज से गुजर सकते हैं जो आसान नहीं है, जिसमें बहुत जानकारी नहीं है या बहुत शक्ति नहीं है, लेकिन आप एक कदम पे कदम बढ़ा रहे हैं। यही तपस्या है। और अगर ऐसा लक्ष्य है, अगर हम उससे स्थिर रहते हैं, अगर हम उस पे डिटर्मिनेशन बना के चलते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा गुण है। दृढ़ता का गुण बहुत अच्छा है आध्यात्मिक प्रैक्टिस के लिए। I would want you to explain us this expression which daily comes up in the spiritual Murli classes which we have in the mornings. That the डेली 40 स्पिरिचुअल people मुरलीज together में एक can't have even one एक्सप्रेशन आता ईंट है which is weak. कि Otherwise, it will संगठन cause में कोई foundation एक to भी collapse. ईंट मुश्किल नहीं हो So, सकती, एक भी can we ईंट have कमजोर this नहीं हो for all सकती, of us? नहीं तो संगठन कमजोर हो जाएगा। तो इसको देखते हुए हम एकता कैसे रख सकते हैं? अगर हम किले की बात करें तो मैं बताना चाहूंगी कि मैं ऐसी जगह पे रह रही हूँ जो 8वीं सदी की एक बिल्डिंग है फ्रांस में। उन दिनों में बहुत लड़ाइयाँ होती थी धर्म के नाम पे,
तो ऐसे नगर बनाए जाते थे जिनके बाहर बहुत मजबूत दीवारें होती थी ताकि वो दुश्मन से बच सके। अगर वो दीवार कमजोर होती थी तो दुश्मन अंदर आ सकता था और किला गिरा सकता था। मैं कई किलों में गई भी हूँ, मैंने देखे हैं। एक किला मैंने ऐसा देखा जो कभी टूटा नहीं, क्योंकि उसके पास उसके बाहर बहुत सारी दीवारें थी। जो किला परमात्मा कह रहे हैं वो किला है पवित्रता का, और ये बहुत छोटा है। हम बहुत कम हैं और हर एक की शक्ति नहीं है पवित्रता की। हर किसी कर्म भी है, ड्रामा भी है, तो बहुत कुछ चल रहा है। तो जब बाबा ये कहते हैं, इसका मतलब ये है कि हमें साथ में खड़े होना है, दृढ़ता रखनी है। जैसे यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने कहा कि हम आखिरी आदमी तक लड़ेंगे, हम टूटेंगे नहीं, लेकिन हम टूट जाते हैं। लेकिन ये केवल एग्जाम्पल्स हैं। लड़ाई, वॉरियर, ये सब एग्जाम्पल्स हैं जो हमें एनकरेज करते हैं ताकि हम छोड़े नहीं, हम दृढ़ रहें, एक दूसरे के साथ खड़े रहें और हमेशा अपना बेस्ट देते रहें। लेकिन जब हम ऐसा कोई एक्सप्रेशन देखते हैं और हम इसको बहुत ही एक्सट्रीम तरीके से देखते हैं, तब हमें गिल्ट या शर्म आने लगती है। ये ऐसी भावनाएं जो हैं ये काउंटर प्रोडक्टिव हो जाती हैं। हमें ये समझना है, क्योंकि हमें ये देखना है कि बाबा हमें एनकरेज कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। नहीं तो मन पे बहुत दबाव पड़ने लगेगा, बहुत नेगेटिव फीलिंग्स इकट्ठी होने लगेंगी। नहीं तो हम परफेक्शनिज्म में जाने लगते हैं, जो कि नेगेटिव हो जाता है और जो परफेक्शन से बहुत अलग है। तो इस स्टेटमेंट की सच्चाई ये है कि बने रहो, स्थिर रहो, छोड़ो नहीं, हम पहुंच जाएंगे अपने लक्ष्य तक। और उसके पीछे हम जानते हैं कि ड्रामा की एक चीज है कि बाबा का काम हमेशा सक्सेसफुल हुआ है। हर कल्प में हमें गोल्डन एज मिली है। ऐसा नहीं कि एक कल्प में मिली, एक पे नहीं मिली। हर ड्रामा सेम है, आइडेंटिकल है। हम जानते नहीं कि क्यों, क्या, कैसे, लेकिन हम ये जानते हैं और बाबा ये बता रहे हैं कि बने रहो, आगे बढ़ते रहो, छोड़ो नहीं। गिर जाओ तो अपने आप को उठा के चलते रहो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो बहुत खुश होंगे कि अगर हम किसी भी एक चीज के बहुत एक्सट्रीम में चले जाएं कि करना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं। चाहे वो कहते हैं, लेकिन हमें देखना है। आखिरी सवाल है, महात्मा गांधी जी ने ऐसा कहा था, यूनिटी टू बी रियल मस्ट स्टैंड द सिवियरेस्ट स्टैंड विदाउट ब्रेकिंग, कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी टूटना नहीं है, यही एकता है। इसे मैं ऐसा कहूंगी कि जो आम मान्यता है, और इसे मैं फिर से एक मिलिट्री के एग्जाम्पल से कंपेयर करूंगी। पुराने समय में ऐसा ही होता था और मोरालिटी ऐसे ही बनाई गई थी कि हाँ ये सही है, ये चीज सही नहीं है। लोग इसी तरीके से सोचते थे। आजकल के समय में ऐसा सोचना बहुत पॉपुलर नहीं है। यही सोचना कि यही सही है, यही नहीं, ये सही नहीं है, और कोई मार्जिन ना रखना बीच में, ये गलत हो जाता है। क्योंकि हमारी जिंदगी ऐसी नहीं है।
हमें ऐसा सोचना या ऐसा कहना अच्छा लगता है, लेकिन ये अनरियलिस्टिक है। लेकिन इससे ऐसा सोचने से मन पे और आध्यात्मिक शक्ति पे बहुत दबाव आता है, क्योंकि तब हम टूटने लगते हैं। जो चीज बहुत रिजिड है वो टूटेगी ही। कोई चीज जो मुड़ सकती है वो कोई भी तूफान सहन कर सकती है, अपने आप को ऊपर उठा सकती है। ऐसा ही होना चाहिए कि हम बहुत रिजिड ना हो। Great. Thanks indeed a lot for answering all the questions so very diligently and patiently. धन्यवाद बहुत बहुत सवालों का जवाब देने के लिए धैर्यता के साथ। Connectivity issues, so he was not able डॉक्टर to अशोक join. मेहता का कुछ So इंटरनेट Sister कनेक्टिविटी Anu इशू था, is तो मैं सिस्टर अनु को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको बहुत थैंक्स दें और अनाउंसमेंट्स भी बताएं। धन्यवाद बहुत बहुत मनोज ब्रदर। हमेशा की तरह इस बार भी हमें बहुत आपसे सुनकर अच्छा लगा। हमें बहुत टिप्स मिले। ये बहुत सिंपल चीजें हैं लेकिन बहुत गहरी हैं, जो चीजें हम समझ सकते हैं। जो मुझे लगा, जो मैं याद रखूंगी, वो ये था कि मेरी जिम्मेवारी मेरी खुद की है, एकता रखने की और हार्मनी रखने की, और फ्लेक्सिबल रहना अपने साथ और दूसरों के साथ भी, ताकि वो गार्डन है उसमें हार्मनी बनी रहे। ये बहुत सुंदर एग्जाम्पल था कि हमें जो पौधे नहीं चाहिए वो निकालने हैं, फर्टिलाइजर लगाना है, पौधे लगाने हैं, और कई बारी हार माननी भी पड़ेगी, लेकिन हमें एकता को प्रोटेक्ट करना है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो आपने बताया कि हमें मेडिटेशन से कैसे शक्ति अपने आप में भरनी है, वो भी बहुत अच्छा लगा। और आउटवर्ड अपीयरेंस, जो बाह्य मुखता या जो बाहर दिखता है, वैसा है नहीं। तो ये कंसेप्ट मुझे बहुत अच्छे लगे। मुझे आशा है कि हम जब जैसे ही बाद में वीडियोस देखेंगे तो इसके बारे में और गहरी सोच और गहरा चिंतन करेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर डेनीस के साथ जुड़ने के लिए। हम मेडिटेशन अब करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ अनाउंसमेंट्स हैं। So, as we always do, after 1 week from today, we'll have जैसा कि हम हमेशा करते हैं, आज से एक हफ्ते बाद उसी गुण पे हम एक वर्कशॉप करते हैं। तो 4 जून को वर्कशॉप होगी एकता पर, ताकि हम इस गुण को और करीबी से देख सकें। हमारे साथ ब्रदर योगेश होंगे टर्की से। पहले हम कुछ एक्सपीरियंशियल एक्सरसाइजेस करेंगे और ब्रदर योगेश इसके बारे में और बात करेंगे और मेडिटेशन का भी सहयोग देंगे। इंडिया में ये 7:30 से 9:30 और वेस्ट कोस्ट पे ये मॉर्निंग 7 बजे। हमारे पास फिर से हमने एक पावर सीरीज भी शुरू की है, मंथ में एक बारी, और अगले महीने है पावर टू डिसर्न या डिस्क्रिमिनेट, परखने की शक्ति। हमारे साथ होंगे ब्रदर एनरिक ब्रह्मा कुमारी स्पेन के साथ, संडे 5 जून को इंडिया में 5:30 बजे शाम के, और वेस्ट कोस्ट में सुबह 8 बजे। आप कृपया नोट करें और हमेशा हम की तरह हमारे साथ जुड़ें। और हमारा वैल्यूज फॉर लाइफ सीरीज का अगला सेशन होगा करुणा पे, संडे 12 जून को, ब्रदर चार्ली के साथ। वो डायरेक्टर हैं ब्रह्मा कुमारीज ऑस्ट्रेलिया के। तो 12 जून सुबह इंडिया के 9 बजे, और टाइम इस बारी कुछ डिफरेंट है ताकि सिडनी का टाइम हम अकोमोडेट कर पाए। वेस्ट कोस्ट के लिए 11 जून शाम को। आशा है हम इन प्रोग्राम्स में भी आपको देखेंगे। और जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट चेक कर सकते हैं, vihasa.in, vancouver.brahmakumaris.ca, या हमारे यूट्यूब चैनल्स को देख सकते हैं। उस पर और सारे वीडियोस हैं हर एक लैंग्वेज में। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।
take us through the name. अब हम सिस्टर डेनीस से रिक्वेस्ट करेंगे ताकि वो हमें मेडिटेशन का अनुभव कराएं। Thank you. ओम शांति और शुक्रिया। So let us turn within. Take हम time. अपने अंदर की ओर देखें, Go deep. कुछ क्षण लें बहुत गहराई में जाने के लिए। Think about the self, अपने आप के बारे में सोचने के लिए, spiritual being, अपने आप को एक आध्यात्मिक the point of light, प्राणी सोचने के लिए, एक ज्योति का बिंदु, life, जीवन की शक्ति है जिसमें with a potential for complete harmony. जिसमें पूरी तरह हार्मनी में रहने का पोटेंशियल है, हर एक के साथ, हर सिचुएशन में। To be at one with the self अपने means आप के साथ एक रहने में I am completely comfortable being me. मैं अपने आप बनने में पूरी तरह से कंफर्टेबल हूँ। I am the light. मैं प्रकाश हूँ, The essence of love. जिसमें प्रेम का गुण है। I exude the atmosphere of peace. मैं अपने वातावरण में शांति वाइब्रेट कर रहा हूँ, मिठास वाइब्रेट कर रहा हूँ, Like a perfume. जैसे एक परफ्यूम होता है। I am in my power. मैं अपनी शक्ति में हूँ। I remain who I am. मैं जैसा हूँ वैसा रहता हूँ। And I'm comfortable with मैं everyone उसी में कंफर्टेबल हूँ। and their ways. मैं हर किसी के साथ उनके तरीकों में कंफर्टेबल हूँ, While still remaining who I am. जैसा हूँ वैसा रहते हुए। I turn my mind beyond the मैं world, अपना मन the drama, इस दुनिया से दूर लेके जाता हूँ, to the one above. जो एक ऊपर है उसके पास। I am open to that one. मैं अपने आप को उनके सामने रखता हूँ, All others. हर किसी से भुला के बस उनके पास रखता हूँ। Fill myself with that light. उसके प्रकाश को अपने आप में भरने के लिए। I become completely subtle. मैं बहुत सूक्ष्म बन रहा हूँ, Away from the gross material world. इस पदार्थों की दुनिया से बहुत दूर। In the light and the stillness. प्रकाश और शांति की दुनिया में I am linked. And the energy flows. मैं परमात्मा की शक्ति अपने आप में भर रहा हूँ। I am still.
मैं एकदम स्थिर हूँ, एकदम शांत। receiving, absorbing, उनकी शक्ति अपने आप में समा रहा हूँ। I become filled with that light, मैं प्रकाश से भर गया हूँ and it radiates beyond me. और ये प्रकाश मुझसे निकल रहा है बहुत दूर तक, पूरे ब्रह्मांड में। The energy of harmony, हार्मनी की एनर्जी, the energy of love, प्रेम की एनर्जी, pulsating through the universe, लहरों की तरह ब्रह्मांड से गुजर रही है, bringing harmony, बहुत हार्मनी लेकर आ रही है। gently let myself return to the everyday बहुत धीरे से मैं अपनी दुनिया में वापस आता हूँ, still in that harmony, quietly, उस हार्मनी को अनुभव करते हुए, शांति से वापस आता हूँ। ओम शांति। Om Shanti. Thank you so much, Sister Denise. ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर डेनीस for your इस मेडिटेशन के अनुभव के लिए और आपके विचारों पे, एकता पे। I also want to thank the whole team and everybody मैं who पूरी actually टीम को भी थैंक करना चाहती हूँ, Brother Manoj and all the team working behind the मनोज scenes. भाई और सारी टीम जो सीन्स के पीछे काम करती है। With the guest speaker, so we don't want to miss it. So we हम have अब एक पिक्चर भी लेंगे experience. I know इस everybody सुंदर मेडिटेशन एक्सपीरियंस के बाद। will take a picture. अगर आप अपने वीडियोस ओपन कर सके तो हम एक फोटो ले सकते हैं अपने गेस्ट के साथ। Take one more. Thank you, everyone. Thank you, Dipsi. धन्यवाद। थैंक यू सिस्टर डेनीस। lots of love. See you all very soon. Bye. बाय।